Hello students, we are going to start the next topic of the chapter, that is application of case 2. Case 2 means the case which we discussed in earlier videos, and in that we discussed about linear equation which have both side variable. As you see, example given here, left hand side and right side both are containing variables. Such equations you solve in exercise 2.3. So many questions you solve. Now we are going to discuss word problem applications based on such equations. Means when we check the word problems and we convert it into linear equation, then that linear equation is converted in two side variables. For just to see exercise 2.4, all the questions are based on the similar pattern. You see, first questions, that is also similar, second, third, fourth, fifth, all the questions are based on the similar pattern. And our motto for application of linear equation in two variables in which both side are variables, in such questions you develop equation according to the given condition. You check the information given in the question, read it 2-3 times to understand the condition. After understanding the condition, what is the requirement of the question, you suppose that, and you after preparing equation, when you prepare equation you get such equations which have both side same variable x or y or z, whatever, and then we solve the equation according to the rule of exercise 2.3. So now we are going to start with an example of such question. You see, an example is taken here, that is NCERT question number 10 or 12 of the exercise 2.4. Question is, Aman's age, Aman is a man or person whose age is 3 times his son's age. Means, I think you understand the question. Aman age is unknown and his son age is also unknown, but the age of Aman is 3 times his son age. Means, if son age is 10 years, then Aman's age is 30 years. So if Aman's age is unknown, that means son age if 20 years, then Aman's age is 60 years. So that is a relation given here in the question. So firstly read the question properly, then further you read the question. 10 years ago means before 10 years, means if today age of son is 15 year, so before 10 year, that means 5 years. Before 10 year his age is 5 year. So that is given here, 10 years ago he was 5 times his son's age. It means what? It means the age of father Aman's age is 5 times his son age before 10 years. Means just 10 साल पहले उसके पिता की, फादर की एज अपने बच्चे बेटे की एज से 5 टाइम्स थी. ये रिलेशन गिवन है. मीन्स अगर अमन की एज सपोज 10 ईयर्स पहले 10 ईयर्स है या 5 ईयर्स है, तो उसके फादर की एज 25 ईयर्स रही होगी. अगर अमन की एज 10 ईयर्स पहले 15 ईयर्स रही होगी, तो उसके फादर की एज 75 ईयर्स रही होगी. सच रिलेशन इज गिवन. सो ये रिलेशन गिवन है और यहाँ से हमें इक्वेशन फॉर्मेशन मिलेगा. मीन्स अगर हमें दोनों को इक्वल करना है तो हमें उसके सन के एज में भी 5 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा ताकि दोनों इक्वल हो जाएं. और ये इक्वलिटी जैसे ही डेवलप करेंगे हमारे पास एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी. सो लेट्स वी स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन. सो इन क्वेश्चन द फाइंड देयर प्रेजेंट एज, दोनों की प्रेजेंट एज हमें निकालनी है.
तो अब दोनों की प्रेजेंट एज तो सपोज नहीं कर सकते हैं। अगर एक की सपोज करेंगे एक्स, दूसरे की दूसरा वेरिएबल यूज करेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। हमें एक ही वेरिएबल सपोज करना है। सो हम पहली इन्फॉर्मेशन जो दी है उसका यूज करेंगे। पहली इन्फॉर्मेशन क्या है? अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। तो अमन की एज उसके सन की एज की 3 टाइम्स है। तो अमन की एज अगर पता चल जाए तो कैसे पता चलेगी? अमन की एज पता करने के लिए हमें उसके बेटे की एज पता होनी चाहिए, क्योंकि फादर की एज, अमन की एज उसके सन की एज के टर्म्स में गिवन है। सो वी स्टार्ट द क्वेश्चन एंड व्हाट वी डू हियर, वी सपोज लेट अमन्स एज, लेट अमन्स सन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। उसके बेटे की हमने प्रेजेंट एज को सपोज कर लिया एक्स ईयर्स, देन हिज अमन्स प्रेजेंट एज क्या होगी? 3 टाइम्स। तो दोनों की प्रेजेंट एज हमें पता चल गई। अमन्स सन इज एक्स ईयर्स एंड अमन्स एज इज 3x ईयर्स। आफ्टर दैट 10 years ago he was 5 times his son's age। सो दोनों की 10 years ago निकालते हैं। 10 years ago age of sons that is equal to x minus 10, माइनस हो जाएगा। x इज अननोन, x कितना हमें नहीं पता है। नाउ 10 years ago अमन्स एज, अमन्स मीन्स उसके फादर की एज, दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट एज 3x है, तो उसमें से हम 10 माइनस कर देंगे। तो दोनों की 10 years ago एज हमें पता चल चुकी है। अब हमारा मोटो क्या है? इक्वेशन को डेवलप करना। इक्वेशन क्या कह रही है? 10 years ago अमन्स एज इज 5 टाइम्स हिज सन एज। तो अमन की जो एज है वो 3x माइनस 5 है, और ये किसका 5 टाइम्स है? x माइनस 5, 10 का 5 टाइम्स है। तो दोनों को इक्वल करने के लिए उसके बेटे की एज में भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि दोनों इक्वल हो जाएं, और वही प्रोसीजर यहाँ पे की गई है। जैसे ही हम 10 से मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये कंडीशन डेवलप हो गई। अब क्वेश्चन में हमने सारे गिवन इक्वेशन, गिवन कंडीशंस का यूटिलाइजेशन कर लिया है। इसको फर्दर अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। पहले तो ब्रैकेट को ऑफ करेंगे। जैसे ही ब्रैकेट ऑफ करेंगे 5 इज मल्टीप्लाइड विद x यू गेट 5x, 5 इज मल्टीप्लाइड बाई -10 यू गेट -50। जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया you reached in exercise 2.3, that is the question of exercise 2.3. now check, both side are variable, both side are number, so you check the variable part, 3x is greater or 5x is greater. So 5x is greater, so we transpose this 3x in right hand side, and the remaining part of the right hand side we directly transpose this in the left hand side. So that procedure is done here. You see, transposing 3x in right hand side and -50 in left hand side. when you transpose, आपको प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया था क्या करना है। -10 पहले से अवेलेबल है तो उसको पहले ही रखना है। देन आफ्टर वी आर ब्रिंगिंग -50, तो इट्स साइन इज चेंज, +50 हो जाएगा। 5x पहले से था राइट हैंड साइड में, 3x इस साइड से ला रहे हैं तो 5x - 3x हो जाएगा। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 3x यू गेट 2x एंड -10 + 50 you get 40. now our motto is to get the value of x, so for that we divide both side by 2. when you divide by 2 you get x is equal to 20. x की वैल्यू आपको पता चल चुकी है। what is the x? x is अमन्स सन प्रेजेंट एज, उसके बेटे की प्रेजेंट एज थी, और उसके फादर की प्रेजेंट एज कितनी है? 3 टाइम्स ऑफ x. सो x की वैल्यू हमें 20 पता चल चुकी है, तो हम इजीली उसमें रिप्लेस कर देंगे, और यहाँ हमें अमन्स प्रेजेंट एज, उसके फादर की प्रेजेंट एज 3 × 20 60 ईयर्स मिल जाएगी, और उसके सन की एज 20 ईयर्स मिल जाएगी। अब देखिए, सन की एज 20 ईयर्स है तो उसके फादर की एज उसकी 3 टाइम्स है, 60 ईयर्स, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। सो दैट इज द मेथड ऑफ सॉल्विंग अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द वर्ड प्रॉब्लम। Now let's start with one more problem of the exercise. These question number 3, question number 4, these two questions are based on the digits, very important question. And how we will solve such questions? You see, we are going to solve the question number 4. What is the question number 4? One of the two digits of a 2-digit number is 3 times the other digit. मीन्स 2 डिजिट के नंबर में क्या होता है? जैसे 24 है तो 2 डिजिट्स हैं इसमें, सो 1 डिजिट इज
डबल ऑफ अदर डिजिट। तो एक रिलेशनशिप दोनों में गिवन है, ये वंस डिजिट होती है, ये टेंस डिजिट होती है। तो कोई भी 2 डिजिट का नंबर लेंगे तो उसमें वंस और टेंस प्लेस रहेगी, तो टेंस डिजिट होगी। जो फर्स्ट प्लेस पे लेफ्ट हैंड साइड से होगी, जो राइट मोस्ट पे होगी, वो वंस डिजिट होगी। दैट इन्फॉर्मेशन इज गिवन। फर्दर वी रीड द क्वेश्चन। इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स of this 2-digit number and add the resulting number to the original number you get 88। ये कंडीशन गिवन है हमें इक्वेशन फॉर्म करने के लिए। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज ओरिजिनल नंबर, हमसे ओरिजिनल नंबर पूछ रहा है। हम पहले की वीडियोस में ये डिस्कस कर चुके थे कि जो भी लास्ट में गिवन होता है वही सपोज करते हैं। नो नो, ऐसा नहीं करना इस क्वेश्चन में, क्योंकि अगर आप ओरिजिनल नंबर सपोज करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ओरिजिनल नंबर आप कैसे सपोज करेंगे, उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो नाउ वी स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। सो व्हाट वी डू हियर, फर्स्टली वी सपोज वंस डिजिट और टेंस डिजिट, जो भी आपको सपोज करना है एक डिजिट सपोज कर लीजिए। लेट्स लाइक जैसे मेरे पास 26 कोई नंबर है, तो हमने इसका क्या सपोज कर लिया, वंस डिजिट। लेट वंस डिजिट इज इक्वल टू एक्स। सो टेंस डिजिट क्या होगी, क्वेश्चन में दे रखा है 3 टाइम्स, 1 डिजिट इज 3 टाइम्स ऑफ अनदर डिजिट। तो एक डिजिट को अगर एक्स सपोज करेंगे तो दूसरी डिजिट क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगी। ये तो हमें डिजिट पता चली। अब हम डिजिट से अगर हमें डिजिट पता हो तो नंबर क्या फॉर्म होता है, कोई भी नंबर बनाने के लिए अगर हमें टेंस और वंस और हंड्रेड्स और थाउजेंड्स प्लेस की डिजिट्स पता हो तो हम क्या करते हैं, टेंस प्लेस के लिए 10 इंटू टेंस प्लेस पे जो भी डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 1 से वंस प्लेस की वैल्यू होती 1 तो उसमें वंस डिजिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो नंबर फॉर्म होगा 10 इंटू 3x, उस प्लेस की जो डिजिट है, प्लस 1 इंटू एक्स, और हमें वो नंबर मिल जाएगा 30 इंटू एक्स प्लस 1, और ये आपका 31x आ जाएगा। इसको समझने के लिए दूसरे शब्दों में समझते हैं। सपोज आपके पास वंस डिजिट है किसी नंबर की और वो 3 है, और आपके पास टेंस डिजिट है कोई, वो आपके पास 5 है। अब इससे जो नंबर बनेगा 2 डिजिट का वो क्या बनेगा, टेंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है 5, तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। और वंस प्लेस पे कौन सी डिजिट है 3, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 53, और ये हमें नंबर पता चल गया। तो दैट इज द मेथड ऑफ गेटिंग नंबर व्हेन वंस एंड टेंस प्लेस आर गिवन। सो नाउ you know once digit, tens digit, and original number is 31 times of x. Now you interchange the digits because क्वेश्चन में ऐसा गिवन है कि न्यू नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। सो व्हेन यू इंटरचेंज द डिजिट्स इट मीन्स व्हाट, अब वंस डिजिट 3x बन जाएगी और जो x है वो क्या बन जाएगा, टेंस डिजिट बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, न्यू नंबर क्या होगा, टेंस इंटू एक्स जो पहले वंस डिजिट था वो टेंस बन चुका है, तो 10 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 3x क्या हो गया है, पहले टेंस था अब वंस डिजिट बन गया है। तो इन दोनों को जब ऐड करके मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे वी गेट 13x, हमें 13x मिल गया। अब हम 13x पा चुके हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज आवर न्यू नंबर, दैट इज 13x इज न्यू नंबर। क्वेश्चन में कंडीशन क्या दे रखा है, क्वेश्चन में कंडीशन दे रखा है इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट्स and add the number resulting new number to the original number you get 88। तो according to the question, A for according, T for to, Q for question, according to the question the new number plus old number original number when you add these two you get 88, that is कंडीशन। जैसे कंडीशन अप्लाई करेंगे आपके पास इक्वेशन फॉर्म हो गई, when you add these two you get 44x is equal to 88। Now you reached in exercise 2.1. Now you simply solve. What is the procedure of solving this? I think you know. To get the value of x, 44 is multiplied, so both side we divide by 44. As soon as you divide by 44 you get 44x by 44 is equal to 88 by 44. When you simplify you get x is equal to 2. What is x? X is a variable, and now one's digit is what, 2, tens digit is what, 3x, that means 3 into 2 that is 6. Now you know the ones digit and tens digit
Now question is find the original number. So to get the original number, 31x. So 31 into 2 you get 62 and 62 is the required original number. अब जरा एक बार आंसर भी चेक करते हैं. वंस डिजिट आपकी 2 थी, टेंस डिजिट 6 थी, तो टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस वंस डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10 6 60 प्लस 1 2 2 और इनको ऐड करेंगे तो 62 आएगा. देखिए नंबर सही आ गया आपका, सही है. आंसर भी चेक कर सकते हैं. आंसर को चेक कैसे करेंगे? 1 डिजिट इज़ 3 टाइम्स ऑफ अदर डिजिट. अगर देखें तो वंस डिजिट 2 है और इसका 3 टाइम्स कितना होता है 6, तो दूसरी डिजिट उसका 3 टाइम्स है, तो आपका आंसर भी चेकिंग हो गया. इन दिस वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज. we can we can solve the question of exercise 2.4. Here are 11 questions are available in the 10 questions are available. So some questions I solve here as example. Now you start and make the equations and try to solve it, but very important thing, read the question slowly. One time, two time you read the question, give the pause during the reading of the question, so that you can understand what is the condition, what is the given information, and then you prepare your question. So that's homework for you. For tomorrow you solve the exercise 2.4. Ask your problem through WhatsApp or message or email. Thank you.